ఒక్కొక్క మీడియా సంస్థ తరఫున ఇద్దరికి అవకాశం ఇవ్వాలని స్పీకర్ గారు భావిస్తా ఉన్నారు. అట్లా వారు కూడా పాసులు తీసుకు अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहे। रियासती वजीर उमूर मखनना वी प्रशांत रेड्डी ने आज कहा है कि 7 सितंबर से शुरू होने वाले असम्बली और काउंसिल के इजलास के पुरअमन इनेकाद के लिए तमाम तर इंतजाम कर लिए गए हैं। उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए बताया कि दोनों ऐवानों में हर नशिस्त के दरमियान 6 फीट का फासला बरकरार रखा गया है। असम्बली में जायद 40 और काउंसिल में 8 जायद नशिस्तों का इंतजाम किया गया है। उन्होंने बताया कि तमाम अरकान असम्बली और काउंसिल के अलावा दोनों ऐवानों में काम करने वाले स्टाफ का कोविड-19 टेस्ट किया जाएगा और उन्हें इजलास के आगाज से 2 दिन कबल ये टेस्ट करवाने पड़ेंगे। असम्बली की रिपोर्टिंग करने वाले सहीफे निगारों को भी कोविड-19 टेस्ट करवाना होगा। इसके लिए सेक्रेटरी मुखनना एक कैंप मुनक्किद करने जा रहे हैं। जिसम का मुकाम असम्बली की सारी इमारत और एमएलए क्वार्टर्स को सैनिटाइज करेगा। सिर्फ वज़रा, अरकान असम्बली और काउंसिल को उनके शख्सी मददगारों के साथ असम्बली में दाखिल होने की इजाजत होगी। उन्होंने ये भी बताया कि मीडिया पॉइंट को बर्खास्त कर दिया गया है और असम्बली के अहाते में कोई गैर जरूरी आदमी मौजूद नहीं रहेगा। ఒక్కొక్క మీడియా సంస్థ తరఫున ఇద్దరికి అవకాశం ఇవ్వాలని స్పీకర్ గారు భావిస్తా ఉన్నారు. అట్లా వారు కూడా పాసులు తీసుకోవాలి. ఒకళ్ళు అసెంబ్లీలో ఒకళ్ళు కౌన్సిల్లో. పాసులతో పాటు కోవిడ్ టెస్ట్ కూడా చేయించుకోవాలని కోరుతా ఉన్నాం. స్పీకర్ గారు, చైర్మన్ గారు ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది. ఆనరబుల్ మెంబర్స్, మినిస్టర్స్, వారి వ్యక్తిగత సిబ్బంది అందరూ కూడా కోవిడ్ టెస్ట్ చేయించుకోవాలని ఆదేశించారు. ఆదేశాలను తూచా తప్పకుండా అందరం కూడా పాటిస్తాం కాబట్టి మీరు కూడా జాగ్రత్త తీసుకోవాలని జర్నలిస్ట్ సోదరులు కోరుతా ఉన్నాం. ఇక్కడే అసెంబ్లీలో, కౌన్సిల్లో కూడా ఇక్కడే సెంటర్స్ ఓపెన్ చేసి ఇక్కడే టెస్ట్ చేసి ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయిపోయింది. అయితే మీరందరూ కూడా సహకరించాలని మీతో విజ్ఞప్తి. ఇంతేగా ఇంకా దీంట్లో వేరే ఉద్దేశాలు ఏమి లేవు. ఎప్పుడు ఎలాగైతే లైవ్ టెలికాస్ట్ జరుగుతుందో ఇప్పుడు కూడా లైవ్ టెలికాస్ట్ అట్లాగే ఏర్పాటు చేయబడుతుంది. కాకపోతే ఛానల్కు ప్రతి ఛానల్ ఇద్దరిద్దరు ఉండి ఆ కనెక్టివిటీ చేసుకునే సందర్భంలో 30-40 మంది ఒక దగ్గర ఉంటారు కాబట్టి అది మంచిది కాదు. కాబట్టి దానికి సరిపడా టెక్నాలజీ మేము ఆలోచిస్తూ ఉన్నాం. ఓబీ వ్యాన్ పెట్టుకొని అట్లా చేసుకోవడమా ఏంటి అని ఆలోచించి లైవ్ టెలికాస్ట్ మటుకు 100% ముందు ఎలా జరుగుతుందో అలాగే జరగడానికి జరుగుతుంది అని చెప్పి మీ అందరికి మనవి చేస్తూ ఉన్నాం. స్పీకర్ గారు ఆదేశించినట్టు ఒక మీడియా పాయింట్ మాత్రం ఉండదు. ఎందుకంటే మీడియా పాయింట్లో ఒక మీడియా వాళ్ళే కాదు, వచ్చి అసెంబ్లీ ఆనరబుల్ మెంబర్స్ వచ్చే వాళ్ళు కూడా అందరూ ఒకరికొక దగ్గరకు ఉంటారు కాబట్టి అది ఎవరికి మంచిది కాదు. ఈ ఒక్కసారికి దయచేసి అందరూ అర్థం చేసుకోవాలని కోరుతా ఉన్నాం. కాబట్టి ప్రభుత్వం తరఫున స్పీకర్ గారు, చైర్మన్ గారు ఏ ఆదేశాలు ఇచ్చినా అవన్నీ కూడా తూచా తప్పకుండా పాటించి ఈ అసెంబ్లీ సమావేశాలు మంచిగా జరుపుతామని, సక్సెస్ఫుల్గా జరుపుతామని, అట్లనే మనందరం అందరి ఆరోగ్యం బాగు కోసం చైర్మన్ గారు, స్పీకర్ గారు సూచించిన అన్ని జాగ్రత్తలు కూడా పాటించి సహకరించాలని చెప్పి కోరుతా ఉన్నా. జై తెలంగాణ. స్పీకర్ గారు, సార్ ఇప్పుడు ఎమ్మెల్యేలు ఎమ్మెల్సీలు క్వశ్చన్లు అడుగుతారు కదా, వాళ్ళ ఆన్సర్స్కు పేపర్లు అట్లా ఇస్తారా లేకపోతే టెక్నాలజీ ప్రకారం మెయిల్ కానీ వాట్సాప్ అని అట్లా చేస్తారా? అంటే పేపర్ వినియోగం తగ్గించే విషయంగా, అంటే ఆ పేపర్ చాలామంది చేతులు మారుతాయి కదా. हैदराबाद मेट्रो रेल ने 7 सितंबर से अपनी सर्विस मरहलेवार अंदाज में दोबारा शुरू करने के मंसूबे को खतियत दे दी है। कंटेनमेंट जोन में आने वाले तमाम 5 स्टेशन बंद रहेंगे। पहले मरहले में मियापुर और एलबी नगर के दरमियान चलने वाली सर्विस शुरू की जाएगी। जराये के मुताबिक ट्रेन के हर डब्बे में दूसरी सीट खाली रहेगी और इस तरह कोविड-19 के खवायद पर अमल करने की कोशिश की जाएगी। हिंदुस्तानी फिजाइया के सरबराह एयर मार्शल आरएस भदौरिया ने सिकंदराबाद में कॉलेज ऑफ वारफेयर का दौरा किया। ये कॉलेज 1959 में कायम किया गया था, जहां फौज के तीनों शोबों को फौजी तरबियत दी जाती है। भदौरिया ने हिंदुस्तानी फौज के तीनों शोबों के जवानों से खिताब भी किया जो हायर एयर कमांड के 44वें कोर्स में हिस्सा ले रहे हैं। तारीखी मक्का मस्जिद और बागेमा की शाही मस्जिद को हफ्ता 5 सितंबर से आवाम के लिए खोल दिया जा रहा है, लेकिन मुसल्लियों की तादाद को 50 तक महदूद रखा गया है। मक्का मस्जिद के इमाम व खतीब हाफिज रिजवान कुरैशी ने बताया कि लॉकडाउन के आगाज से मक्का मस्जिद में
सिर्फ 5 मुसल्लियों को नमाज की इजाज़त दी गई थी, लेकिन अब हुकूमत ने इसमें काफ़ी रियायत दी है। उन्होंने बताया कि कल नमाज फजर से इस मस्जिद को 50 मुसल्लियों के लिए खोल दिया जा रहा है। उन्होंने मुसल्लियों से घरों से ही वजू करने और अपने साथ जाए नमाज लाने की ख्वाहिश की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिही व हबीबिहिल करीम अम्मा बाद। नाज़रीन किराम, जैसा कि ऐलान किया गया है, तारीख़ी मक्का मस्जिद में कल 5 सितंबर से 50 मुसल्लियों की मस्जिद में नमाज़ पढ़ने की इजाज़त का ऐलान किया गया है। तो इसी सिलसिले में इंशाअल्लाह ताला कल फजर की नमाज से मस्जिद सिर्फ 50 मुसल्लियों के लिए खोली जाएगी। तो मैं तमाम मुसलमानों से और यहाँ मक्का मस्जिद में जो बहैसियत मुसल्ली बरस हा बरस से आते हैं उनसे अपील करता हूँ कि तमाम जो हिदायत है इस सिलसिले में उसको मद्देनज़र रखते हुए मस्जिद को आएँ आप। और सिर्फ 50 आदमियों की इजाज़त दी गई है। इंशाअल्लाह ताला फिर मुस्तक़बिल में अगर हालात बेहतर रहेंगे तो फिर आगे इजाज़त भी दी जाएगी। तो इस सिलसिले में एक बहुत अहम बात मैं आपको बता दूं कि मक्का मस्जिद में वज़ू के लिए हाउस की मरम्मत चल रही है और तहारत खाने भी मुनहदिम कर दिए गए हैं, जदीद तामीर उसकी चल रही है। तो आप हज़रात से गुजारिश है कि अपने घरों से वज़ू करके आएँ और तहारत खाने से भी फ़ारिग़ होकर आएँ, ताकि यहाँ पर आपको सिर्फ नमाज़ पढ़ने की गुंजाइश रहे। क्योंकि यहाँ पर वज़ू वगैरह और तहारत का कोई इंतज़ाम नहीं है। अपने घर से ही वज़ू और तहारत करके आएँ, अपने साथ एक जानमाज़ भी लेकर आएँ और मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि मास्क के बग़ैर मस्जिद में आने की इजाज़त नहीं होगी आपको। सैनिटाइज़र वगैरह जो भी है से मुताल्लिक़ जो भी आपके लिए फ़राहम है उसको इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंस का ख़ास ख्याल रखें। इसकी भी अहमियत बताई गई है यहाँ पे। सोशल डिस्टेंस के साथ ही इजाज़त दी गई है 50 आदमियों की। तो मैं अपील करता हूँ आप हज़रात से कि 60 साल के ऊपर के हज़रात बिल्कुल मस्जिद में ना आएँ, क्योंकि उनके लिए परमिशन नहीं है। और 10 साल से कम बच्चे भी अपने साथ न लाएँ। 10 साल के ऊपर और 60 साल के अंदर जितने भी हज़रात हैं वो आ सकते हैं मस्जिद में। कल इंशाअल्लाह ताला फ़जर की नमाज से अवामुन्नास के लिए 50 अफराद पर मुश्तमिल यहाँ पर दाखिले की इजाज़त रहेगी। फजर, ज़ोहर, असर, मगरिबी, शाम पाँचों नमाज़ों में भी इंशाअल्लाह 50 आदमियों का सिलसिला शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि इस सिलसिले में जो हिदायत हैं अतिबा के इसको मलहूज़ रखते हुए मस्जिद में आएँ और अपनी और अपने घर वालों की और अपने आस पास के लोगों की हिफाजत फरमाएं। मलकपेट के मजलिस शरीफ के संबली अहमद बलाला ने आज अंबरपेट मंडल के तहत शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तहत मंजूरा 116 चेक्स दरखास्त गुजारों में तकसीम किए। इस मौके पर मंडल रेवेन्यू ऑफिसर के अलावा मजलिस कॉर्पोरेटर्स और कायदीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। सेक्रेटरीट में एक मंदिर और 2 मसाजिद के निज़ाम के खिलाफ एरागड्डे में आज बाद नमाज जुमा मुकामी लोगों ने जबरदस्त एहतजाज किया। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो इस निज़ामी कार्रवाई पर अवाम के दोनों तबकात से माफी चाहे और इन इबादत गाहों को उसी मुकाम पर दोबारा तामीर करने का वादा करे। मोहम्मद मोइन कुरैशी ने बताया कि हिंदू हो या मुसलमान अपनी इबादत गाहों के इंतजाम को बर्दाश्त नहीं कर सकते और इनमें गम गुस्सा पाया जाता है। एहतजाजी मुजाहिरीन के हाथ में प्ले कार्ड्स थे जिन पर मंदिर मस्जिद बचाओ, टीआरएस हुकूमत को भगाओ जैसे नारे तहरीर थे। हमारा मुकाबला है हमारे कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जहाँ मस्जिद और जहाँ मंदिर जहाँ डिमोलिशन हुई गई वहीं और मस्जिद और मनमायन है। सारे हमारे मुसलमान भाई और हिंदू भाई से हमारी अपील है कि इसमें आगे बढ़ के हिस्सा लीजिए आप लोग, वरना नहीं तो आप देखते जा रहे हैं। कल शमशाबाद में भी डिमोलिशन वाली थी, सडन वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ पर भी गड़बड़ करने के बाद मस्जिद का भी काम रुक गया, तो वहाँ की मस्जिद भी डिमोलिशन हो रही थी। बल्कि आप लोग बता रहा हूँ, आप लोग सोते हुए और देखते हुए रहते नहीं होने वाला है। आप लोग जागते रहो, नहीं तो वरना आगे और हालात खराब होने वाले के आप लोग। 4 आदमी है मस्जिद और मस्जिद जहाँ डिमोलिशन जहाँ शहीद हुई वही बनना बोल के हमारा डिमांड है। मैं आप लोगों से सब लोगों से अपील कर रहा हूँ कि आप लोग सो मत जागो बोल के मैं आप लोगों से अपील कर रहा हूँ, क्योंकि हालात दिन पे खराब होते जा रहे हैं। कि आप देखो कल शमशाबाद पर भी एक मस्जिद का यही आलम होने वाला था कि कांग्रेस पार्टी के वर्करों पहुंचने के बाद तो मस्जिद का काम भी रुक गया। वरना आप लोग अगर इस चीज़ों में अगर आगे बढ़ के काम नहीं करेंगे तो आगे और हालात खराब होंगे। तो तमाम लोगों से मेरी अपील है कि मस्जिद और मंदिर
वही बनना बल्कि हमारा अपील है। केसीआर सारी हुकूमत में तानाशाही हुकूमत चला रहे लोग, ये हुकूमत को आप लोग आने वाले वक्त में आप लोग सोने की जरूरत नहीं है, जागो आप। तो कल भी शमशाबाद में एक मस्जिद का ऐसी होने वाला था कि लोग जाके वहाँ जहाँ मस्जिद और मंदिर जहाँ शहीद हुई वो मस्जिद और मंदिर वहीं बनना बल्कि हमारा डिमांड है। बहादुरपुर के मजलिस शरीफ असम्बली मौजम खान ने आज ख्वाजा फंक्शन हॉल में अपने हल्के के तहत मंजूरा शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के 482 चेक तकसीम किए, जिनकी जुमला मालियत 4,77,62,000 रुपये बताई जाती है। इस मौके पर मजलिस कॉर्पोरेटर्स मोहम्मद मुबीन, हुसैनी पाशा, मोहम्मद सलीम, नुमाइंदा कॉर्पोरेटर एमएन और दूसरे भी उनके हमरा थे। के अंदर रमनतपुरे में ख्वाजा फंक्शन हॉल के अंदर शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेकों का डिस्ट्रीब्यूशन रखा गया था। आज तकरीबन 482 चेक्स बांटा गया है और इसकी कीमत 4,77,62,100 रुपीज़ थी। लॉकडाउन की वजह से तकरीबन 4 महीने 5 महीने से शादी मुबारक चेकों का डिस्ट्रीब्यूशन रुका हुआ था। मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन और सदर मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव साहब को रिप्रेजेंटेशन करे। जो गरीब माँ बाप थे, अपने जो बच्चों की शादियाँ करे थे, बहुत परेशान थे ये लोग इनके चेकां रुकने की तरफ। तकरीबन 7 महीने 8 महीने हो चुके थे जो चेकां शादी हुए बाद भी रिलीज़ नहीं हो रहे थे। मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन के रिप्रेजेंटेशन के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की जानिब से इमीडिएटली शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के चेकों का डिस्ट्रीब्यूशन सैंक्शन हुआ और आज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन हमेशा आवाम के दरमियान में रही है, आवाम के साथ रही है। आवाम के तकालीफ में आवाम का वक्त, जब तकलीफ़ का वक्त था उस वक्त भी मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन आवाम के साथ ठहर कर उनकी तकलीफ़ को दूर करने की कोशिश की। जैसा मिसाल के तौर पर लॉकडाउन हिंदुस्तान में जब हुआ था, गरीब लोग काफ़ी परेशान हो चुके थे, खाने के लिए उनको अनाज नहीं था, खर्चे के लिए पैसे नहीं थे। उस वक्त भी मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन और सदर मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन, MLA, कॉरपोरेटर, मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन के सारे वर्कर्स आवाम के दरमियान में रहकर आवाम को काफ़ी मदद करे हैं। उसी तरह इस वक्त भी शादी मुबारक स्कीम के तहत जो चेकां रुके हुए थे वो भी रिप्रेजेंटेशन कर उसको भी सैंक्शन कराए हैं। इसके अलावा महिलाओं के अंदर जो भी मसाइल के काम होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कॉरपोरेटर, हमारे वर्कर्स सारे उस मसाइलों को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला और भी प्रोग्राम्स होंगे। और आज इस प्रोग्राम में मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन के बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के कॉरपोरेटर्स जनाब मुबीन साहब, जनाब सलीम साहब, जनाब हुसैनी पाशा साहब, जनाब हन्नान साहब और मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन के वर्कर्स मौजूद थे। इंशाअल्लाह ताला और प्रोग्राम हुआ जाएगा और प्रोग्राम के साथ आपके सामने वो भी डिटेल्स रखी जाएगी। शुक्रिया। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजिबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप सिलेक्शन।